Hello and a very warm welcome to all of you on the Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu Pandey and today in this video we are going to discuss about an important current affairs topic and that is TEMPO. Right, you heard it right. It is TEMPO. TEMPO is basically a satellite or you can say a machinery which is launched recently by the NASA, which is the space organization of USA, using the SpaceX rocket, and this particular satellite is launched because it is going to monitor the air pollution of northern American region from the space. Yes, so this is a first of its kind satellite which is going to monitor the air pollution from the space, right? So it is a new kind of technology, and in this video we are going to discuss about the different aspects of this particular topic. So first of all, we will discuss that where this particular topic belongs in the UPSC syllabus, right? So in the UPSC examination, there is a part which is called mains examination, and in this mains examination, you know that there are 4 papers of GS, first to 4, and in these 4 papers, in the GS third paper, there are 2 subjects, and that are science and technology, and the second one is environment, right? So basically, if we analyze this particular topic, so this topic belong both of these topics. The reason is very simple. In the science and technology section, we generally study about different types of technologies, and one of them is space technology. This topic belong to NASA and a space mission, so that is going to be related in the science space technology. Also, this particular topic satellite is launched for the to monitor air pollution, which is a part of environment. So this topic also belongs environment section of GS3. Also, as always, this particular topic is going to help you in the upcoming prelims examination, which is to be contested in the on the 28th of May, right? So in the prelims examination, there are chances that UPSC is going to ask some current affair question, and one of them could be this particular topic, space mission of NASA, which is known as TEMPO, right? So what we are going to discuss in this video, first of all, we will discuss why news, why we are studying this topic. Then we will discuss what is TEMPO. Then we will discuss further special features of TEMPO. There are some special features which make it special. We will discuss in this segment. Also, we will discuss the applications of TEMPO. What are going to be the major applications of TEMPO? And at last, we will discuss the importance of this mission. So basically, it is first of its kind mission. So that is why it has a lot of importance, right? So there are a lot of things to discuss in this video. Let's start this one by one. So first of all, why in news? So what was the news? Recently, NASA released a statement in which it mentioned that SpaceX, which is a company of Elon Musk, right? You must have heard this name, Elon Musk, and his company is called SpaceX, which is basically a company which launches satellite through its rockets in the space. So recently, SpaceX Falcon 9 rocket successfully launched, carrying a new NASA device or satellite which is known as tropospheric emissions monitoring of pollution. In briefly, it can say TEMPO. तो अभी क्या हुआ है, SpaceX की Falcon 9 रॉकेट से नासा ने एक डिवाइस को लॉन्च किया है विच इज नोन एज TEMPO. उसका एम क्या है, डिजाइन टू मॉनिटर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर एमिशन सोर्सेज across North America from space more comparatively than ever before. So basically इसका जो ultimately aim है वो क्या है, to monitor the air pollutants and their emission sources. जो air pollution है वो कितना है, कैसा है, और इसके basic sources कहाँ से ये generate हो रहा है, उसको analyze करना है, उसको monitor करना है across North America, not for the entire world, it is for the North America. तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ये मशीन डिवाइस सैटेलाइट काम करेगा और वहां पर दिन के टाइम पर ओनली इन द डेज वो मॉनिटर करेगा एयर पॉल्यूशन को और उसके सोर्सेस को, और इसका नाम क्या है, टेम्पो. तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, उस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी कौन है, टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है, और टेम्पो की मेन यूज केस क्या है, क्या रीजन है इसको लॉन्च करने के, राइट. तो दिस इज वाई इट इज इन द यूज राइट नाउ. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज टेम्पो. टेम्पो समझ में आया कि इसका मेन एम क्या है. टेम्पो बेसिकली क्या है, सो इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच वाज डेवलप्ड बाय नासा
which will enable scientists to monitor air pollutants and their emission sources from space down to neighborhood level। तो बेसिकली मैंने अभी जस्ट आपको लास्ट लाइन में बताया कि इसकी जो मेन काम है वो क्या है कि वो स्पेस से एयर पोल्यूटेंट्स को मेजर करेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उसके सोर्सेस को एनालाइज करेगा कि वो कहाँ से निकल रहे हैं सबसे ज़्यादा। दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विल मेजर पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी अक्रॉस ग्रेटर नॉर्दर्न अमेरिका ऑन एन आवरली बेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कि ये सैटेलाइट, ये मशीन जो है, डिवाइस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका रीजन के लिए है। सेकेंड थिंग, वो आवरली बेसिस पर चीज़ों को मॉनिटर करेगा। और थर्ड थिंग, केवल डे टाइम पर ये मॉनिटर करेगा, राइट। सो इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, कहाँ पर किस पर्टिकुलर रीजन के लिए लॉन्च किया गया है, कब काम करेगा और कितने समय के लिए काम करेगा। तो ये तीन आंसर आपको मिल गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। What are the special features of Tempo? आगे और क्या क्या करने वाले हैं। It will be hosted on an Intelsat communication satellite in geostationary orbit। तो बेसिकली क्वेश्चन जनरली आता है कि किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में रखा गया है। So it is placed in geostationary orbit about which is 35-36,000 kilometers above from the equator, right? तो इक्वेटर से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस पर्टिकुलर डिवाइस को स्थापित किया गया। और इसकी खास चीज एक और भी है जो आप आगे समझेंगे। दिस विल अलाउ द इंस्ट्रूमेंट टू मैच द रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। तो इसको ऐसे प्लेस किया गया है कि ये अर्थ की रोटेशन के साथ ही रोटेट करता रहेगा एंड दैट्स व्हाई इट विल स्टे ओवर द सेम लोकेशन फॉर ऑल द टाइम्स। इसका मतलब क्या है, आपको पता है अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट पर इस पर्टिकुलर डिवाइस को ऐसे प्लेस किया गया है कि ये अर्थ के साथ साथ उसी एंगल पर रोटेट करेगा। इससे होगा क्या कि अर्थ के रोटेट करने के बाद भी ये सैटेलाइट अपनी लोकेशन को छोड़ेगा नहीं। अगर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर इसको प्लेस किया गया है तो वो वहीं रहेगा, राइट। इट विल बी एबल टू मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन डाउन टू अ स्पैटियल रेजोल्यूशन ऑफ 4 स्क्वायर माइल्स 10 स्क्वायर किलोमीटर। मैंने बताया 1 आवर पर ये एक बार रिपोर्ट देखेगा और वो जो रिपोर्ट होगी वो बेसिकली 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर के जो पूरा रीजन है, क्षेत्र है, उसी को मॉनिटर कर पाएगा एक टाइम में, राइट। तो हो सकता है 10 किलोमीटर के रीजन को मॉनिटर किया, अगले घंटे वो अगले 10 किलोमीटर को मॉनिटर करेगा। तो एक साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका को नहीं करने वाला है। और कितना करने वाला है, 4 स्क्वायर माइल्स या फिर 10 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो ये कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं। पहला, कहाँ पर प्लेस किया गया है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। किस तरह से प्लेस किया गया है कि वो अर्थ के साथ ही रोटेट करेगा सो दैट वो नॉर्थ अमेरिका पर ही फोकस करें। थर्ड थिंग कि वो 10 स्क्वायर किलोमीटर के जो पूरा रेडियस है इस पर जो है वो एक बार में आपको इन चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्पेशल फीचर्स रहने वाले हैं। इसके बाद आपका मेन चीज आती है कि एप्लीकेशंस ऑफ टेम्पो, कि बेसिकली चलो मान लिया हमने कि इट इज गोइंग टू मेजर द एयर पॉल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका, बट are there any other applications? Yes, there are some other applications. First of all, it will measure the levels of various pollutants, कि हवा में कितने प्रकार के pollutants प्रदूषक कण हैं उसको मेजर करेगा। प्रोवाइडिंग एयर क्वालिटी फोरकास्ट, तो अब ये जैसे वेदर फोरकास्ट है वैसे एयर क्वालिटी फोरकास्ट निकालेगा कि हो सकता है कि आज एयर पॉल्यूशन मान लीजिए 100 के लेवल पर है तो कल 120 हो सकता है, या से पहले 90 था तो आगे हो सकता है 140 हो जाए। तो इस तरह की फोरकास्ट निकालेगा किसमें, एयर पॉल्यूशन के। जैसे वेदर के होते हैं ना, कल बारिश होने वाली है तो ये फोरकास्ट है वेदर का। सिमिलरली एयर पॉल्यूशन का भी निकाल सकता है, एयर क्वालिटी का भी। हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा इसका डाटा कि कैसे हम एमिशन को जो कंट्रोल करने की अपनी नीतियां बनाएंगे, स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, आगे चलकर इस डाटा का यूज करके जो इस डिवाइस देगा हमें, हम कैसे और बेहतर तरीके से इन स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं, राइट। तो इसकी एक ये भी एप्लीकेशन है। स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द लाइटिंग ऑन द ओजोन, तो ओजोन लेयर के बारे में आप सभी को पता है। सो इस ओजोन लेयर में कितना एयर पॉल्यूशन के वजह से इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसकी लाइटिंग कितनी कम ज़्यादा हो रही, इन सब चीज़ों पर भी जो है ये नज़र रखेगा और एक रिपोर्ट देगा आपको। साथ ही साथ ट्रैकिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन केस ऑफ वाइल्ड फायर्स, वॉल्केनोज एंड फर्टिलाइजर इफेक्ट्स। तो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनमें कुछ आपके क्या है, वॉल्केनो इरप्शन भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका
वाइल्ड फायर्स भी हो सकते हैं, जंगलों में आग भी लग सकती है, तो इनसे भी एयर पॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली होगा। तो कहीं ना कहीं इनसे निकलने वाले एयर पॉल्यूशन को भी ये ट्रैक करेगा और उसको भी एनालाइज करके बताएगा कि कहाँ किस पर्टिकुलर रीजन में कितना एयर पॉल्यूशन बढ़ा या घटा इनकी वजह से, राइट। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एक डिवाइस आपका काम करने वाला है नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद द डाटा विल बी यूज्ड बाय द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA एंड द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। और इन दो ऑर्गेनाइजेशन इस डाटा को यूज करेंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। बेसिकली इनका काम क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को ही ट्रैक करना। और सिंस दिस डिवाइस इज लॉन्च टू ट्रैक एयर पॉल्यूशन, तो आगे चलकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस डाटा को यूज करके अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दीज आर गोइंग टू बी एप्लीकेशंस ऑफ टेम्पो। एट लास्ट वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मिशन। ये मिशन जो है लॉन्च तो कर दिया गया, इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन लंग एसोसिएशन। लंग आपको पता है, इसको हिंदी में फेफड़े कहते हैं, इसका जो उनका एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग मोर देन 40% ऑफ यूएस पॉपुलेशन विच इज 37 मिलियन लिव इन द प्लेसेस विद अनहेल्दी लेवल ऑफ पार्टिकल पॉल्यूशन। सो यूएसए की अमेरिकन लंग एसोसिएशन की ये रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग अभी यूएस की अराउंड 40% पॉपुलेशन जो है ऐसी जगह पर रह रही है जहाँ की एयर क्वालिटी अनहेल्दी है। इंडिया और चाइना, बाकी पाकिस्तान के रीजन्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा खराब है, आपको पता है। तो वहाँ की बात कर रहे हैं फिलहाल। और ओजोन और एयर पॉल्यूशन इज ब्लेम्ड फॉर 60,000 प्री मैच्योर डेथ अ ईयर। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए में अराउंड 60,000 डेथ हो जाती हैं समय से पहले। तो ये शो करता है कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से ह्यूमैनिटी के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया है। तो कितना ज़्यादा हेल्थ पर ये बैड इफेक्ट कर रहा है ये आपको समझ में आएगा। टेम्पो विल ट्रैक पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ओजोन। तो यहाँ पर जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, दैट इज पेट्रोल, डीजल एंड ऑल, उसको आगे उससे निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ये मॉनिटर करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को मॉनिटर करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉनिटर करेगा और आगे जाकर हमको ट्रैक कर बताएगा कि कितना कहाँ पर परमिशन हो रहा है। तो इससे होगा क्या, दो चीजें होंगी। पहली, हमको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, तो हमें किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनानी है। सेकंड, हम इसका हेल्थ और अदर जो भी एस्पेक्ट्स हैं, इसके इफेक्ट्स हैं, उनको भी एनालाइज करके उन सेक्टर्स में भी अच्छी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है। तो इसलिए इस तरह से ये टेम्पो जो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चलकर। इंडिया जैसे कंट्रीज जहां पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एक लेवल से ऊपर निकल चुका है, वहां पर हमें भी ऐसे डिवाइसेस को लॉन्च करने की नीड है। अगर ये डिवाइस सक्सेसफुल रहता है और जनरल इसका कोई इफेक्ट हमको देखने को मिलता है जो नॉर्थ अमेरिका में, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इसरो द्वारा भी ऐसे डिवाइसेस को लॉन्च करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस टेम्पो मिशन के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। यूपीएससी के आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है टेम्पो के ऊपर, तो ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।